નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હું પીનલ આપનું સ્વાગત કરું છું. ડે સ્પેશિયલમાં વાત કરીશું આજના તહેવારની, પણ તેની સાથે સાથે આજનો જે આ તહેવાર છે તેની જે રીતે ઉજવણી કરવામાં આવે છે એટલે કે વિજયાદશમી, એટલે કે દશેરા, એટલે કે અસત્ય પર સત્યનો વિજય, એટલે કે દુર્ગણો પર ગુણોનો વિજય. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આજના દિવસે જ રામ ભગવાને રાવણનો વધ કર્યો હતો ને આ રામાયણ લગભગ કદાચ એવું કહી શકાય છે કે બધા જ લોકોએ કદાચ વાંચી ન હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક જોઈ તો હશે જ. અને આપણે આજના દિવસની જે રીતે ઉજવણી કરીએ છીએ, જે પ્રકારે કોરોના કાળમાં કદાચ ન કરી શક્યા, પરંતુ રાવણનો જે વધ આજે પણ કરવામાં આવે છે. આજે પણ ઘણા મોટા મોટા મેદાનોમાં રાવણનો જે પૂતળું હોય છે તેને દહન કરવામાં આવે છે. ને વિજયાદશમી એટલે શક્તિની ઉપાસનાનો તહેવાર માનવામાં આવે છે. ને શક્તિનો અર્થ છે કે બળ, સામર્થ્ય અને પરાક્રમ. દરેક જે વ્યક્તિ છે પોતાના બળનું, સામર્થ્યનું અને પોતાના પરાક્રમનું, પોતાની શક્તિનો જે ઉપયોગ છે તે અલગ અલગ રીતે કરે છે. હવે રામ ભગવાનની વાત કરીએ કે રાવણની વાત કરીએ કે હનુમાનજીની વાત કરીએ, બધાએ પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ તેમની રીતે કર્યો છે. રાવણ પાસે પણ એવી જ શક્તિઓ હતી, અને રામ ભગવાન પાસે પણ ઘણી શક્તિઓ હતી, તો હનુમાનજી પાસે કંઈક અલગ શક્તિઓ હતી, પણ એ બધાએ પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે કર્યો છે. હવે રાવણ એક એવો વ્યક્તિ કે જેને આપણે રાવણ કહીએ છીએ ને આજે પણ જેના પુતળાનું આપણે દહન કરીએ છીએ, પણ એની સાથે સાથે એ જ રાવણની પૂજા પણ કરાય છે શ્રીલંકામાં. તો એ રાવણ કે જે ક્યાંક પૂજનીય છે અને ક્યાંક એનું દહન કરવામાં આવે છે, કે ક્યાંક એને રાક્ષસ માનવામાં આવે છે, તો એક જ વ્યક્તિમાં આ અલગ અલગ ગુણો કઈ રીતે જોવા મળે છે. ને આજના સમયમાં રામ અને રાવણ આ બંનેના જીવનમાંથી આપણને શું સંદેશો મળે છે? ને રાવણના જીવનમાંથી પણ સંદેશો મળે, યસ મળે, કારણ કે રાવણ પોતે પણ શિવ ભક્ત હતો અને એની સાથે એ પોતાના જે સંબંધો એટલે કે એના પરિવારજનો જે હતા એમની માટે પણ એ ઘણું એવું કરતો, અને ક્યાંક એવું પણ કહી શકાય કે એક અલગ રૂપ એનું પણ હતું. રામ ભગવાન કે જેમના પર આખી રામાયણ છે, જેના પર આખું વિશ્વ છે, આ દુનિયા છે, તેમના જીવનમાંથી તો ઘણું બધું શીખવા જેવું છે. તો કઈ રીતે તેમણે પોતાના પરિવારનો ત્યાગ કર્યો, કઈ રીતે પોતાની પત્નીને અપનાવવા, કઈ રીતે તેમણે વનવાસમાં તેઓ રહ્યા હતા, અને ત્યારબાદ પણ જે રીતે તેમણે ત્યાગ કર્યું હતું, આ બધામાંથી આજના સમયમાં કે જ્યારે આજે આપણે મોડર્ન લાઈફમાં જીવી રહ્યા છીએ, 21મી સદીમાં જીવી રહ્યા છે, ત્યારે આ બધાની વ્યાખ્યા કેટલી બદલાઈ જાય છે અને આ બધામાંથી શું શીખવા જેવું છે, રામાયણમાંથી શું શીખવા જેવું છે, રામ ભગવાનના જીવનમાંથી શું શીખવા જેવું છે, આ બધી જ વાત આજે આપણે કરીશું. જેની માટે મારી સાથે લાઈફ કોચ जुड़ाई गया है रजनीश पाटिल जी, आपનું खूब खूब स्वागत है. वेलकम टू डे स्पेशल. तो रणजीत जी, आज हम बात कर रहे हैं दशहरा को लेकर के, यानी कि असत्य पर सत्य का विजय. जैसा कि हम हमेशा इस त्योहार को मनाते हैं, तो सबसे पहले तो आज के दिन के बारे में क्या कहेंगे? एक लाइफ कोच के हिसाब से तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन असत्य पर सत्य का विजय, इस व्याख्या को आप किस तरह से लेते हैं? बेसिकली अगर आप ठीक से देखोगे, भारतीय जनमानस रामायण और महाभारत का अमिट प्रभाव है. हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है भारतीय संस्कृति. रामायण और महाभारत एक महाकाव्य है. आज हम रामायण की बात कर रहे हैं. रामायण का मतलब है कि हमें कैसे जीना चाहिए, उसके जो संदेश है, कहते रामायण से हमें स्पष्ट रूप में मिलते हैं. महाभारत का मतलब ये लोग कैसे होते हैं, इसके बारे में महाभारत में बात होती है. रामायण का सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आज रावण का वध है, दशहरा जिसे कहा जाता है हमारी हिंदू माइथोलॉजी में, कि रावण नाम के व्यक्ति का, भगवान राम ने, जो हमारे माइथोलॉजी के हिसाब से 7वें अवतार माने गए हैं, रावण का वध कर देते हैं. तो आज के दिन में हम विजयादशमी मनाते हैं, जो सत्य का असत्य पे विजय हुआ था, सत्य जीता था और असत्य हार गया था. आज के समय में हम सब कहते हैं कि अरे यार, ये तो ऐसी बातें लेके क्यों बैठे हो, रामायण महाभारत की क्या जरूरत है, हम तो प्रो मॉडर्न है, 21वीं सदी 22 साल की हो चुकी है. सच में क्या मतलब है सत्य और असत्य का, स्पेशली आज के कॉन्टेक्स्ट में? मेरा मानना है सत्य का मतलब है जो हमेशा था, है और रहेगा. सत्य कभी बदलता नहीं है जी, असत्य बदलते रहता है. तो हमारे अंदर ऐसे भाव दशाएं हैं, हमारे अंदर ऐसे कुछ गुण हैं जो किसी भी युग में उन गुणों का वैल्यू ही हुआ है. और जो बुराई है, जो बदलती रहती है, जो असत्य है, तो मैं पर्सनली मानता हूं जो
पवित्र गुण है, अच्छे गुण है हमारे अंदर, वो जी कभी नहीं बदलते। जैसे प्रेम है, शांति है, अपनापन है, कॉपरेशन, ये गुण है। और बुराई मतलब है जो अहंकार है, नकारात्मकता है, निगेटिव विचार, ये बुराई है। तो सत्य का मतलब मैं मानता हूं जो कभी नहीं बदलता है, असत्य का मतलब है जो बदलते रहता है। तो जी दशहरा का जी मतलब है मेरे लिए, असत्य नष्ट हो जाता है और सत्य प्रकट हो जाता है, स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो राम हमारे माइथोलॉजी में अच्छे गुणों के प्रतीक हैं, और रावण हमारे माइथोलॉजी में बुरे गुणों के प्रतीक है। और वर्ल्ड के हर सभ्यता में अच्छे गुण और बुरे गुणों का ये युद्ध दिखाया गया है, बताया गया है। जी जी जी। रंजित जी, यहाँ पर अगर सबसे पहले रावण की हम बात करें तो रावण को एक बुरे व्यक्ति की तरह से रावण मतलब एक शब्द ही आज भी हम किसी इंसान को अगर गुस्से में कहते हैं कुछ खराब तरह से तो उसे रावण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो रावण को ये मान सकते हैं कि शिव भक्त होते हुए भी उसके अंदर जो एक अहंकार था, जो एक अभिमान था, कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं वो अहंकार और अभिमान का अंतिम उदाहरण ही रावण था। जी, देखिए ऐसा कहते हैं कि भगवान राम को अपने अहंकार का ज्ञान था, हम्म रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था। हम्म। भगवान राम को उनके अहंकार का ज्ञान था, लेकिन रावण को अपने ज्ञान का ही अहंकार था। जी। अगर रावण की बात करें तो रावण एक शिव भक्त थे, वेदों के ज्ञाता थे और प्रखर पंडित थे। हम्म। उनमें बहुत से अच्छे गुण भी थे। उन्होंने जी अपने के लिए बदला लेने के लिए अपने उन्होंने युद्ध लड़ा, जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने किया उनके परसेप्शन से। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन एक गुण बुरा है, तो बुरा गुण आपका सर्वनाश करता है, हम्म वो सर्वनाश करने वाला गुण है। हम जो भारतीय मिथोलॉजी में रावण को याद करते हो, अहंकार के प्रतीक में याद करते हैं। राम जो है वो स्वाभिमान के प्रतीक में याद करते हैं। स्वाभिमान का मतलब है स्वयं के प्रति भाव, अपने पवित्र भाव के प्रति जो भाव है वो स्वाभिमान है। स्वाभिमान हर किसी के लिए जरूरी है। लेकिन अहंकार, अभिमान, अभी और मान, अभी और मान, अपने मान के लिए किसी और को कुचल देना, साम दाम और दंड भेद करके, वो रावण की मानसिकता है, वो अहंकार की मानसिकता है। हम सबके अंदर राम है और हम सबके अंदर रावण भी है। हम सबके अंदर अच्छाइयां हैं और हम सबके अंदर बुराइयां भी है। तो हमें, लेकिन रंजित जी, अपने अंदर की रावण को पहचानना ये एक हर किसी की बस की बात नहीं होती है। और हर किसी के बस की बात ये भी नहीं होती कि पहचानते हुए भी अपने अंदर के उस रावण को मार सके। जी जी, देखिए पिनल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं जब समाज में देखता हूँ, आई एम एज लाइफ कोच, मैं देखता हूँ कि समाज में तीन तरह के लोग आपको दिखेंगे, जिसे मैं कहता हूँ एबीसी। कुछ लोग हैं अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं और कुछ लोग कंफ्यूज हैं। अगर आप ठीक से ऑब्जर्वेशन करोगे अपने जीवन का, आप देखोगे 10% लोग अच्छे ही है, कुछ भी करो वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं। 10% से समाज में लोग मिल जाएंगे। 10% ऐसे लोग हैं वो बुरे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बुराई नहीं छोड़ेंगे। और 80% लोग कंफ्यूज हैं, वो परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं, कभी वो अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। मेरा पर्सनल मानना है, अच्छे जो लोग हैं उनकी अच्छाई को आप खिला नहीं सकते हो, और जो बुरे लोग हैं उनकी बुराई को मिटा नहीं सकते हो। जो 80% लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, उनके लिए डेफिनेटली काम किया जा सकता है। ये जो हम बात कर रहे हैं आज दशहरे के दिन, ये संवाद जो चल रहा है, वो 80% जो लोग कंफ्यूज है उनके बारे में बात चल रही है। अभी कंफ्यूजन का मतलब है कि कभी कभी हमें बुरी चीजें भी आकर्षित कर जाती है, और कभी कभी हम अच्छाई में भी आ जाते हैं। लेकिन कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप महाभारत का एग्जाम्पल लेते हो तो अर्जुन कंफ्यूज है, तो भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं, जिसे गीता कहते हैं। अभी रामायण जो है, भगवान राम के बारे में बहुत से क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि भगवान राम ने सीता मैया को अग्नि परीक्षा करवाई। लेकिन जी अगर आप भगवान राम के ठीक से ऑब्जर्वेशन करते, वो स्वयं अवतार थे, वो अपने माँ के लिए, उनको पता था कि उन पे अन्याय हो रहा है, फिर भी 12 साल उन्होंने वनवास सहा। वो इतने यानी सुपुत्र थे, इतने अच्छे पुत्र थे कि अपने माँ बाप की गलत इच्छा को भी उन्होंने सही दिया। वो प्रतीक थे कि तुम अपने माँ बाप की वैल्यू करना सीखो। वो समाज में एक ऐसा संदेश देना चाहते थे जहां आप एक अच्छे व्यक्ति बन के रहो। तो हम्म। पूरा जो रामायण है, जहां की राम भगवान राम पे एक शंका आती है कि वो उन्होंने सीता मैया को क्यों छोड़ा। वो
एक राजा थे और प्रजा के लिए जो जरूरी है उन्होंने वो चीजें की। उन्होंने कभी पर्सनल पति के रूप में नहीं देखा, उन्होंने राजा के रूप में, एक आदर्श पुरुष के रूप में उन्होंने अपना रोल निभाया। वो कभी किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं किया, वो आदर्श राजा थे और वो समाज में आदर्श, त्रेता युग में आदर्श। रावण भी लंका का राजा था रंजीत जी। उन्हें रावण को भी हम एक राजा की तरह कैसे देख सकते हैं, उसके राज में भी प्रजा थी, वो अपनी प्रजा को रखता भी था, और वो लंका जो थी वहां पर उसके राज में काफी लोग भी रहते थे। तो रावण को एक राजा की तरह से हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, रावण एक राजा थे, एक शक्तिशाली राजा थे, शिव भक्त भी थे और वेदों के ज्ञाता भी थे। ये सारे गुण होने के बावजूद भी उनमें अहंकार नाम का एक रोग था जो उनके पूरे अपने जीवन को प्रभावित करता है। रावण का पूरा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रावण के पक्ष को बहुत समर्थन देते हैं। श्रीलंका में जाओगे तो आज भी रावण की पूजा होती है। डेफिनेटली सत्य, स्थल, काल, तो परिस्थिति। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है, एक संदेश है कि वो राजा अपनी प्रजा के लिए तो सही था। एग्जैक्टली लेकिन जब अहंकार नाम का जब रोग लग जाता है तो राजा भी नष्ट होता है और प्रजा को भी बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। जब राजा बनता है तो उसे अहंकार के दोष से मुक्त रहना बहुत जरूरी है। भगवान राम के जीवन में आपको कोई अहंकार नहीं दिखेगा और रावण के जीवन में पद पद अहंकार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हम कहते हैं दशानंद, उनके 10 चेहरे थे। इसका मतलब क्या है? सिंबलिक है, माइथोलॉजी है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें सच में 10 चेहरे होंगे? आई गेस, आई क्वेश्चन। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलता है, जिसमें अवगुण ज्यादा होते हैं, उसके 10 चेहरे हो जाते हैं। राम अंदर बाहर एक ही थे। तो राम का मतलब है आपके अंदर बाहर एक होना, इंटीग्रिटी जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट में, वो इंटीग्रिटी एक्सपेक्टेड है। रावण चेहरे बदलते थे। आज भी जो जिन लोगों के चेहरे ज्यादा बदलते, रावण है क्या तो 10 चेहरे लेके घूम रहा है। चाहते कुछ और हो, सोचते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। ये साम दाम दंड की जो मानसिकता है वो रावण की मानसिकता है। राम का मतलब है जो चाहते हो, सोचते हो, बोलते हो, करते हो, एक दिशा में होना, इंटीग्रिटी होना, कॉन्ग्रुएंसी होना, वही राम है। तो देखने की परसेप्शन है। दुनिया में सही गलत बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। स्थल, काल, परिस्थिति के हिसाब से सही गलत बदलते रहता है। जी। और आज के समय पर भी हम देखते हैं ऐसे कई लोग हैं कि जिनके खुद के भी आज रावण की तरह 10 चेहरे होते हैं। जी हाँ। लेकिन बस ये जरूरी नहीं कि हर किसी के जीवन में वो राम हो जो वो 10 चेहरों को पहचान सके। और कहीं ना कहीं तो ये भी मान सकते हैं कि हम हमारी लाइफ में अगर हम खुद पहचान लें हमारे वो 10 चेहरे, तो हमें ही अपने जीवन का राम बनना पड़ता है। उन 10 चेहरों को मार के वो एक चेहरा पसंद करना पड़ता है जो जीवन के लिए सही हो, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। जी रणजीत जी, अभी हम राम और रावण के जीवन की बात करें तो परिवार और संबंधों को लेकर इन दोनों की लाइफ को हम कैसे देख सकते हैं? जैसा कि राम भगवान ने अपनी ही माता के लिए पूरा राज भोग, पूरा त्याग कर दिया, वनवास चले गए। अगर रावण की बात यहाँ की जाए तो सुपनका काम का बदला लेने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। तो यहाँ दोनों के लिए ही उनके उनके जो फैमिली मेंबर्स, उनके जो परिवार है, उनका महत्व था उस समय पर भी, रावण भी हो या राम हो, और दोनों के लिए। देखिए, परिवार तो सबका एक फंडामेंटल यूनिट है। चाहे त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, परिवार में ही हम रहते हैं। राम एक पारिवारिक व्यक्ति थे और रावण भी एक पारिवारिक व्यक्तित्व थे। राम ने अपने परिवार के लिए, अच्छे गुणों के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं, अच्छाई के लिए किए हैं। अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जो अच्छा है, उन्होंने कभी पर्सनल एजेंडे के लिए कुछ नहीं किया। राम का जीवन अगर आप देखोगे, भगवान राम कहते हैं, उन्हें आदर्श पुरुष कहते हैं हम, 7वें अवतार। रावण जो है, उनके अंदर कुछ बुरे गुण थे, तो उस बुरे गुणों की वजह से उन्होंने परिवार, मेरा ऐसा मानना है, आई मे बी रॉन्ग, आई मे टोटली रॉन्ग, अपने बुरे गुणों के लिए उन्होंने अपने परिवार को भी दांव पे लगाया और अपने राज्य को भी दांव पे लगाया। तो देखने के नजरिया है, आप किस तरह से चीजों को देखते हो। लेकिन मेरा यह मानना है कि 10 चेहरे होना वही रावण है आपके अंदर, और एक ही चेहरा होना वही राम है। देखिए, जो झूठ बोलता है ना, उसे सच क्या पता ही होता है। तो मैं ये कहता हूं कि राम और रावण से हमें वही सीखना है कि हम कैसे से ज्यादा अच्छे रहे अपने परिवार के लिए। देखिए पिनल मैडम, मेरा ऐसा मानना है, जो आदमी समाज से हार जाता है ना, घर में आके रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जो घर में हार जाता है वो कहीं रिलैक्स नहीं हो पाता है। जी जी जी, जी। हमारे अंदर ये जो राम है, ये जो राम है, मैं रामानंद सागर की बात नहीं कर रहा, उन्होंने रामायण तैयार की। मैं बात कर रहा हूं उस राम की जो हमारे अंदर अच्छाई है, मैं इसे भाव पक्ष कहता हूं। हम सबके अंदर एक भाव पक्ष है, शुभ्र पक्ष है, वो राम है।
जो हमारी अच्छाई है, जो पीस चाहता है, जो हैप्पीनेस चाहता है, जो जॉय चाहता है, जो लिविंग है, जो केयरिंग है, जो अपने परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज करता है, ये जो क्वालिटीज है, ये हमारे अंदर के शुभ पक्ष है। हमारे अंदर कुछ काले पक्ष भी है, जी। अहंकार है, विरोध है, भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मत्सर है, ये जो नकारात्मक पक्ष है वो हमारे अंदर के रावण पक्ष है। वो हमारे परिवार को भी नुकसान करता है और ऑब्वियसली हमारे समाज में भी गलत मैसेज जाता है। तो हमें देखना है कि हमारे अंदर की जो सफेद पक्ष है, जो हमारे अंदर जो व्हाइटनेस है, हमारे अंदर जो ध्रुव पक्ष है, जो हमारे अंदर चैतन्य पक्ष है, जो शुभ पक्ष है, उसको हमें ज्यादा पोषित पोषित करना है, या हमारे अंदर जो नकारात्मक पक्ष है जिसमें मनोदशाएं कहता हूं, नकारात्मक भाव है, उसको पोषित करना है। आज के दिन मुझे लगता है दशहरे के दिन हमारे अंदर जो बुरे पक्ष है, हमारे अंदर जो नकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक भाव है, उसको नष्ट करने का दिन है। और हमारे अंदर जो अच्छे पक्ष है उसको समृद्ध बट करने। उसके लिए तो पहले उसे पहचानना जरूरी है। कुछ लोग चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पता भी हो ना कि वो नकारात्मक और नेगेटिविटी क्या है। वो शायद सुना होगा ना, कहते हैं ना कि इंसान का स्वभाव ना उसके मरते दम तक नहीं जाता है, तो वो खुद ही कुछ नहीं कर सकता। तब एक लाइफ कोच की तरह इस बारे पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम पहचान भी लेते हैं कि हमारे में ये नेगेटिविटी है, अगर रावण को भी ये पता चल जाता, अगर चाहता भी, तो हम कर ही नहीं पाते ना, हमारे स्वभाव के विरुद्ध हम कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए, स्वभाव के बारे में बहुत से कंफ्लिक्टिंग धारणा है। पहली चीज, दो अलग चीज है, स्वभाव और प्रभाव। अगर एक वकील को पूछा जाए रामायण और महाभारत क्या है, तो वकील कहेगा रामायण कुछ नहीं, किडनैपिंग केस है, और महाभारत लैंड एक्विजिशन का केस है, जमीन का केस है। स्वभाव और प्रभाव दो अलग चीज है। राम भगवान अपने स्वभाव में रहे, रावण प्रभाव में गए। उनको लगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और अहंकार के बेहोशी में उन्होंने खुद का भी नाश किया, अपने परिवार का भी नाश किया, और अपने समाज का भी उन्होंने नाश किया। स्वभाव का मतलब है अपने पवित्र भाव के प्रति रहना। आपके अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। बुराई प्रभाव है मेरे हिसाब से, अच्छाई स्वभाव है। और मैं बोलता हूं कि हमेशा जो व्यक्ति झूठ बोलता है तो सच पता ही होता है। 5 करोड़ लोग भी झूठ बोले पीनल मैडम, वो झूठ ही है। तो किसी और की पत्नी भगा के लेके जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, उस समय में भी, आज के समय में भी। तो वो बुरा तो बुराई है, चाहे त्रेता युग में आज उस समय में तो बिल्कुल भी नहीं। आज के समय में तो सब पता नहीं कितना कॉमन होता जा रहा है। लेकिन जब बात इस समय की जाए तो ये ज्यादा वो टफ है सुनने के लिए। अब रंजीत जी, अगर संबंधों की बात करें तो यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक पति की तरह से, क्योंकि आज के समय में ये बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे ही रिलेशनशिप में जब बात पति पत्नी की हो तो आज हम देख रहे हैं कि काफी सारे डाइवोर्स केसेस, झगड़े, परिवार में प्रॉब्लम्स, ये बहुत देखने मिल रहा है। तो अगर रावण की बात की जाए, वो भी उनकी भी पत्नी थी, उसके बावजूद भी वो एक ऐसे पति थे। और राम की बात की जाए तो उन्हें आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। जी देखिए, दो अलग चीजें होती है ऐसे लाइफ कुछ आप मुझे पूछोगे। एक होता है रोल, एक होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी समाज में होती है। भगवान राम एक आदर्श राजा है उस समाज के, त्रेता युग में उस समाज के वो आदर्श राजा है, हमारे भारतवर्ष के आदर्श राजा है। उनकी वो आइडेंटिटी थी, और एक पति के रूप में उनका एक रोल था। लेकिन उनकी वो सिचुएशन जिस तरह से थी, उनको वहां लगा कि मुझे मेरे आइडेंटिटी को, क्योंकि पूरा एक समाज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस आइडेंटिटी को उन्होंने जस्टिस दिया है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अपने रोल को, अपने परिवार में रोल को उन्होंने अपना अच्छी तरह से निभाने की कोशिश की, और अपने आइडेंटिटी को भी जस्टिस देने की कोशिश की। रहा रावण की बात, रावण ने अपने आइडेंटिटी को अहंकार में कन्वर्ट कर लिया, और अहंकार में नाश ही होता है। अगर आप महाभारत में जाके देखते हो, बहुत इंटरेस्टिंग आता है। भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास जाते, कहते कि दुर्योधन छोड़ दे, ये हटवाद छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे, धर्म और अधर्म को पहचान। तो दुर्योधन कहते हैं कि मुझे पता है आप ईश्वर के रूप हो, 8वें अवतार हो, और मुझे पता है धर्म और अधर्म में क्या फर्क है, लेकिन मेरा रस अधर्म में ही है, मेरा रस अधर्म में ही है। अभी जिसका रस अधर्म में, यही ये बात है ना रंजीत जी, यही ये बात है ना स्वभाव की। अगर वो खुद ये पहचानता है कि उसका रस अधर्म में ही है, तो वो यहाँ क्या कर सकता? वो प्रभाव है पीनल मैम। प्रभाव जो होते हैं ना, वो नकारात्मक होते हैं। स्वभाव हमेशा पॉजिटिव होता है। आज भी पूरे वर्ल्ड में, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक वर्ल्ड में, हार्वर्ड से लेके स्टैनफोर्ड तक की चर्चा चलती है कि आदमी का मूल स्वभाव क्या है। क्या आदमी फंडामेंटली बुरा है? कुछ पक्ष है, कुछ फिलोसोफर्स है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हम फंडामेंटली बुरे हैं, और कुछ ऐसे फिलोसोफर्स है, वैचारिक है, कहते हैं कि हम फंडामेंटली अच्छे ही हैं।
मेरा सो अनुभव ये कहता है, जितना मैंने समझा है, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी टोटली रॉन्ग, हम फंडामेंटली अच्छे ही हैं, देयर इज नो शैडो ऑफ डाउट। लेकिन प्रभाव में जब जाते हैं वहां सारी गड़बड़ियां होना शुरू हो जाती है। तो प्रभाव से बच के स्वभाव में रहना बहुत जरूरी है। स्वभाव का मतलब मेरे अंदर जो अच्छाई है, फॉर एग्जांपल चलिए जेनेटिकली से देखते, आपको गुस्सा आता है पिनल मैम, हम गुस्से में कितना देर रह सकते हैं? आप देखिए गुस्से में आप कितने देर रह सकते हो? ज्यादा नहीं रह सकते गुस्से में आप। भय में आप कितनी देर रह सकते हो? निगेटिव जो पक्ष है हमारे यहाँ बायोलॉजी में, हम ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव पक्ष में हम ज्यादा रह सकते हैं। हमारी बायोलॉजी है फंडामेंटली पॉजिटिव पक्ष के लिए बनी है। जो हमारे अंदर अच्छाई है उसको सस्टेन करने के लिए हमारी बायोलॉजी बनी है। लेकिन जब आप निगेटिव पक्ष में जाते हैं, जिससे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, फियर एंड एंगर, अब फियर एंड एंगर में ज्यादा जाते हो तो मैं उससे कहता हूं प्रभाव। फियर एंगर में सर्वाइवल मोड में आप नकारात्मक ज्यादा हो जाते हो, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से सर्वाइवल करना है। साम दाम दंड भेद करके किसी भी तरीके से आपको सर्वाइव ही करना है। तो वहां सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जब आप अपने स्वभाव में हो, अपनी अच्छाई में हो, तो अपनी अच्छाई की बात ही कुछ और होती है। और वर्ल्ड वाइड जो अभी सर्वे और जो रिसर्च हुए हैं साइकोलॉजी में, न्यूरो साइंस में, ये सिद्ध करते हैं कि आदमी फंडामेंटली अच्छा ही है। और हमारी माइथोलॉजी में, भारतीय कल्चर में आज का दिन बुराई को नष्ट करके अच्छाई के बारे में बात चलती है। दशहरा वही है कि हमारे जब हम दशहरे की बात कर रहे हो रणजीत जी, तो विभीषण के बारे में क्या कहेंगे? उससे विभीषण से भी एक ऐसा कैरेक्टर थे जिनसे एक बहुत अलग मैसेज जाता है, घर का बेदी लंका ढाए, ये आज भी हमें सुनने मिलता है। देखिए अगर आप ठीक से देखोगे, जेनेटिकल फैक्टर से देखोगे, तो जेनेटिकल फैक्टर से कहते हैं कि भाई भाइयों में हमेशा एक एनवी बनी रहती है, एक वर्चस्व की लड़ाई बनी रहती है। पूरे इतिहास गवाह है, जेनेटिकली भाई भाइयों में एक राइवल बना रहता है। मैं उसे राइवल की तरह देखता हूं जेनेटिकल एंगल से। विभीषण ने जो कुछ किया उस समय में, उनके परिस्थिति में, उन्होंने भगवान राम का पक्ष लिया और भगवान राम के लिए उन्होंने काम किया। आज के कंटेक्स्ट में हम उसे बोलते हैं कि उन्होंने धोखा दिया अपने परिवार को, क्योंकि सत्य जो है कॉन्टेक्स्ट रिलेटिव है। हर किसी का पर्पज होता है, हर किसी का पर्पज होता है, राम का भी, रावण का भी, विभीषण का भी। विभीषण ने अपने पर्पज के लिए काम किया। डेफिनेटली उनको लगा कि नहीं, राम का पक्ष सही है, तो उन्होंने राम को मदद की, सपोर्ट किया। परिवार के एंगल से देखोगे तो डेफिनेटली वो रॉन्ग है। सत्य के आधार पे देखोगे, वास्तविकता के आधार पे देखोगे तो डेफिनेटली विभीषण मैं योग्य मानता हूं, विभीषण को योग्य मानता हूं। तो देखने के नजरिया है। सवाल यह है कि मुझे मेरे अंदर के पॉजिटिव पक्ष को ज्यादा नरिश करना है या नेगेटिव पक्ष को नरिश करना है। पॉजिटिव पक्ष जो है, मैं कहता हूं आपके अंदर राम बसे, हम बोलते हैं हम सबके अंदर राम बसे है, वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर है ही। शिंडलर लिस्ट देख लीजिए आप, एक मूवी है जिसको ऑस्कर मिला है, शिंडलर नाम का बंदा, हिटलर के जमाने में उसने हजारों लोगों को बचाया। उसको पता था कि हिटलर को पता था वो मर जाएगा, उसकी फैमिली मर जाएगी, लेकिन शिंडलर ने फिर भी बहुत से नाजियों को बचाया। शिंडलर लिस्ट कहते हैं उस मूवी को, शिंडलर नाम की बंदे ने किया। तो उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। वातावरण बहुत प्रतिकूल था उस जमाने का। वो रावण था, हिटलर नासिक है, वो रावण था, लेकिन फिर भी शिंडलर ने हजारों लोगों को बचाया। अपने अंदर की अच्छाई को उसने मिटने नहीं दिया, इसलिए हम शिंडलर का नाम देते हैं। जी, काश ऐसा हर कोई कर पाता। जी रणजीत जी, अंत में क्या कहेंगे आप दशहरे पर? अपने अंदर के रावण को कैसे ढूंढे, कैसे मारे, और अपने अंदर जो एक लड़ाई हम देखते हैं, हमारे जीवन में भी हम रोज असत्य और सत्य के बीच में लड़ाई देखते हैं, उसमें भी हम हमेशा विजय प्राप्त करें, सत्य का विजय हो, उसके लिए क्या कहेंगे अंत में? देखिए कहते हैं सत्य हारता नहीं, बस तो यानी कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, थोड़ा थक सकता है, लेकिन वो कभी हारता नहीं है। सत्य कभी हारता नहीं है, पहली चीज। जी। दूसरी चीज, जब भी हम डे बाय डे लाइफ में, लाइफ कोच, डे बाय डे लाइफ में हम जो एक्सपीरियंस लेते हैं, हम सब अनुभव लेते हैं पिनल मैम, राइट? तो अनुभव में आप देखोगे कि अनुभव का मतलब क्या है। अनुभव का मतलब होता है बुराई छोड़ना और अच्छाई का नरिश करना, अच्छाई को नरिश करना, वही अनुभव होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बुरा अनुभव होता है तो हम बुरे अनुभव को और ज्यादा शक्ति देते हैं, अल्टीमेटली हम चक्र में फंस जाते हैं। अनुभव का मतलब है बुराई छोड़ देना और अच्छाई को नरिश करना, वही अनुभव है। रावण के बहन पे जो अन्याय हुआ, जो कुछ हुआ, उसने समझाने के ऐसा क्यों किया, लक्ष्मण ने क्यों काटा अपने उसके बहन का, उसने बदला लेने की मानसिकता रखी। और सबको पता है कि आखिर में रावण का अंत हुआ, उसके राज्य का अंत हुआ।
तो हम सबके जीवन में अनुभव होते हैं, अनुभव हर रोज होते हैं। अनुभव में नेगेटिव पक्ष को छोड़ना और पॉजिटिव पक्ष को पकड़ना, जी वही जी 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 आज के समय में हमें देखना है। डे बाय डे लाइफ में जो अनुभव करते हैं हम, तो हमारे अंदर नेगेटिव अनुभव होते हैं, तो रावण पक्ष को छोड़ना और हमारे अंदर अंदर जो अच्छे अनुभव होते हैं, राम पक्ष को पुष्ट करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट संदेश है आज के दशहरे के जी दिन। जी 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 जरूर से। और यही मैसेज आज लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास भी कर रहे हैं। तो समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब हमारे साथ जुड़े अजीत जी। और दशहरा के दिन पर राम और रावण दोनों के ही जीवन में से जो सीखने जैसा है, जो समझने जैसा है, वो लोगों को भी आपने समझाया। इसके लिए आपका खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू बिनवर, थैंक यू। તો આજે વાત કરી છે દશેરાના દિવસે રામ અને રાવણના જીવનમાંથી શું બોધપાઠ લેવા જેવું છે, રામાયણ માંથી આપણે શું શીખી શકીએ છીએ ને આજના સમયમાં 21મી સદીમાં રામાયણ અને મહાભારત જે આપણા ઇતિહાસ છે તેનું કેટલું મહત્ત્વ આજે પણ રહેલું છે ને સત્ય પર જે સત્યનો વિજય છે, જે દુર્ગુણો પર ગુણોનો જે વિજય છે, એ આપણી અંદર પણ આ જે લડાઈ છે જે રોજ ચાલતી હોય છે તેના પર પણ આપણે પણ ક્યાંક કઈ રીતે સત્યનો વિજય કરી શકીએ છીએ તે પણ આપણે સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે આજે ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં. બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.